شیخ الحدیث امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ بنافی خاتم النبیین امیر المجاہدین علامہ مولانا خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ یہ سالانہ اس کی تقریبات کے آغاز کے سلسلے میں یہ پریس کانفرنس اور آپ ساتھیوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ ان کا نظریہ، ان کے دیے ہوئے افکار اور اقوال جو امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں، اور یہ اس کی تقریبات باقاعدہ اپنے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ آغاز ہوں گی اور انشاءاللہ اسے انجام تک پہنچے گی۔ اور ان کے نظریات جس نے پوری دنیا میں ایک امت مسلمہ کے اندر قابضہ لہر اور جناب ایک جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہر پیدا کی، اسی عزم و استقلال کے عزم نو کے لیے، اسی جذبے کے عزم نو کے لیے، انہی افکار کو مزید اقوام عالم تک پہنچانے کے لیے اور اپنے لوگوں کے دلوں میں دوبارہ سے اسی روشنی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اس تقریب کا اہتمام ہے۔ اور ہمارے صوفیاء کے سلسلے میں یہ تقریبات نہایت اہمیت کا حامل ہوتی ہیں، جس کے اندر اس شخصیت کے ان تمام زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو زندگی کے پہلو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی ایک جہد مسلسل ہے، اور جس کا ہر پہلو ایک درخشاں تاباں ستارے کی طرح چمک رہا ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ وہ ہمارے سب آنے والے شاکان مصطفیٰ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ نہایت طویل اور بڑی خوبصورت اور 3 روزہ اس کی تقریبات رکھی گئی ہے، جنہیں انشاءاللہ اس کے اندر پاکستان نہیں بین الاقوامی سطح کی تمام شخصیات جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، اگر کوئی رکاوٹ نہ بنی تو وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنے خطابات سے اور اپنے افکار سے انشاءاللہ لوگوں کے دلوں کو منور کریں گے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کی زندگی ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے اور وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے گزری۔ اور وہ زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں اس پاکستان کی تاریخ میں کہ شاید ان کا ثانی یا ان کی طرح کا کوئی شخص دوبارہ اس دھرتی کو نصیب نہ ہو سکے، جنہوں نے اپنے افکار سے بھی، اپنے اقوال سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ہر میدان عمل میں ایک جاندار مقدمہ اٹھایا اور اس مقدمے کے اوپر پہرا دے کر بتایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترجیحات اور اسلام کے بنیادی اصول اور اسلام کی روح آج بھی زندہ ہے، لیکن اس کے لیے اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور وہ تمام شکوے شکایتوں کے ساتھ اسی پاکستان کی مٹی کے ساتھ اور وفادار رہے، اور اسی پاکستان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اماج گاہ بنانے کے لیے آخری وقت تک کوشاں رہے۔ اگرچہ ریاستی نااہلوں نے اور حکومتی نااہلوں نے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اور تمام تک ریشہ دوانیوں کے باوجود ان کی آواز کو بہت سارا دبانے کی کوشش کی، بلکہ ان کی آواز اور ان کی تصویر تک کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ جب اللہ نے دیا ہے تو جو ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ جڑ جائے گا اس کا ذمہ بھی اللہ کے سپرد ہے۔ اور ان کا نام، وہ اپنے حصے کا کام، بلکہ وہ اپنے حصے کا نہیں، وہ پوری امت کے حصے کا کام کر کے گئے ہیں، جس کو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میں اس
मीडिया की तवज्जो से भी और सोशल मीडिया के तवज्जो से भी जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन तमाम दोस्तों को, भाइयों को मदऊ करना चाहता हूँ कि वो आए देखें कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का मंशूर क्या है और इसके आने वाली मुस्तक़बिल में मंशूर क्या है। बहुत शुक्रिया। राम भाई, ये रेड वाला बाइक का खाना यार सारी डिस्टॉर्शन आ रही है, खाली है, बाइक किसी भी गाड़ी में नहीं आ रही 19, 20, 21 नवंबर कल से जोर से उसकी तकरीबात शुरू हो गई। ये रेड वाला आप सब ये हटा रहे हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू है, आप भी सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब हम ही देंगे आप। बेरोजगारी, बिजली, पेट्रोल, बेयकीनी की सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेकाम है, डॉलर रुक नहीं रहा, इस पे आपकी जमात का मौक़िफ़ क्या है? दूसरा एक साथ ही इसके ज़िमनी सवाल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती इमरान खान साहब कहते हैं कि ये हुकूमत नहीं कर सकती, तो क्या आप समझते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार नहीं है वज़ीर आज़म को तैनात करने का? आपने मुल्क के अंदर महंगाई, बेयकीनी की जो सूरत की बात की है, तो ये मुल्क उसी वक्त सीधे राह पर चल सकता है जब जिस मकसद के लिए इस मुल्क को बनाया गया है। वो मकसद था कि हमने मुल्क बनाते हुए नारा लगाया था, ला इलाहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन 70 साल उसी नारे के साथ गद्दारी हो रही है। उसी नारे के हमने पसे पुश डालकर इसके नज़रियात को जहाँ हमारा दिल किया हमने बेचा, और जिसका जो दिल किया इस मुल्क के साथ किया, और जिस एक शख्स ने जिसने भी आया उसने अपनी नज़रिए की बुनियाद पर इस मुल्क को चलाने की कोशिश की। ये मुल्क पाकिस्तानी अवाम का है, ये मुल्क इसमें बसने वाले 95% इस्लामियान है और इस्लामियान पाकिस्तान है। तो इस मुल्क को जिन नज़रियाती बुनियादों पर हासिल किया था, जब तक उन पर नहीं चलाया जाता तो ये मुल्क कभी अपने ट्रैक पर वापस नहीं आ सकता। और दूसरी आपने बात की कि आर्मी चीफ की तैनाती, ये सवाल पहले भी हो चुका। हमने कहा था कि ये उनके इदारे का मसला है कि वो जिसको आर्मी चीफ लाना चाहें सेनेटरी की बुनियाद पर या काबिलियत की बुनियाद पर, ये उनके इदारे का मसला है। अगर इसमें हुकूमत का इख्तियार है तो हुकूमत जो भी मौजूदा है उसको चाहिए कि वो आर्मी चीफ की तैनाती कर दें। अच्छा, आप साहब दो मुख्तसर से सवाल है कि आज दिखाई में मौजूदा सिपहसालार का बड़ा आप चूँकि वो जा रहे हैं अलविदा मुलाकातें मुख्तलिफ पोस्ट में जा रहे हैं, तो उनका जो टन्योर है उसको हाफिज़ साहब रिजवी अमीर का बैग किस तराजू में देखते हैं, क्योंकि आपकी बात आपकी स्टेटमेंट बड़ी है। और तीसरा दूसरा जो सवाल का जवाब लेने की काफ़ी आपका सवाल हर दफ़ा बहुत फर्क ले जाते हैं, नहीं जितना भी सबको जवाब ले लें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हैसियत अमीर आर्मी चीफ का एक ज़र्रे बराबर भी कर नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हैसियत अमीर साद रिजवी की रिहाई में सारा किरदार तहरीक लब्बैक के कारकुनों का है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने दूसरा सवाल नहीं, वो तो बड़ा अजीब है। कश्मीर की फरोख्त इसी टन्योर में हुई है। ये इतना बड़ा कलक है कि जिसको कभी वो शायद अपने माथे से धो ना सके। आगे बता दें कि इस वक्त तमाम जो मजहबी जमातें हैं वो सूदी निज़ाम के खिलाफ जो है जद्दोजहद कर रही है, तो हुकूमत अब खत्म करना चाह रही है, तो ये संजीदा आपको नजर आ रही है कि ये कोई बीच में अगर हुकूमत संजीदा हुई तो उसकी संजीदगी सामने आ जाएगी। अभी तक तो बयानबाजी की हद तक ही है, हम उस वक्त का इंतजार कर रहे रिटायर हो रहे हैं। नहीं, अगर उनकी मुद्दत पूरी हो रही है तो रिटायर हो रहे हैं। दुकान के लिए आप ये करिएगा, आपकी उसकी जो तकरीबी बात हो रही है क्या इसमें अलामा हासिल चलाने को भी आपने दावत दी? हमने सलाह आम है याराने नुक्ता दान के लिए वो यार आप सब पीटीआई की गवर्नमेंट की जाने से ये पीटीआई की जाने से तैयार किया जा रहा है कि पाकि हुकूमत रिपोर्टेड है, इसको बरमी मुदाखलत के जरिए आई है, क्या आप भी समझते हैं पाकि हुकूमत रिपोर्टेड है? और दूसरा वो का ये है कि फौरी इलेक्शन जो है, क्या फौरी इलेक्शन के हक में आप भी चाह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन? मैं तो 70 से बाद बनने वाली तमाम हुकूमतों पे रिपोर्टेड कहता हूँ, वो समेत इमरान खान के। इलेक्शन के वाले से आप भी हिमायत करते हैं कि फौरी इलेक्शन हो? इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, जो वक्त है।
रामा साहब ये बता दें आप कि टीएलपी बतौर प्रेशर ग्रुप काम करेगी या सोलो फाइट रहेगी या आगे मतलब हुकूमत में आने का कोई इरादा रखती है? तहरीक लब्बैक नजरियाती बुनियादी सियासी दीनी जमात है, ये अपने नजरिए की बुनियाद पर हमेशा अपना किरदार अदा करती है। अच्छा आप ये बताएं कि आपकी समाज जो है सियासत में भी हिस्सा ले रही है, इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन अवामी सवाल तो बड़ा अजीब है। नहीं, अवामी इशूज के ऊपर तो कभी आप अवामी इशू किसे समझते हैं? ये महंगाई सबसे पहला मार्च कराची में हमने निकाला था, फिर लाहौर के अंदर हमने निकाला था, फिर उसके बाद बिलावल साहब कराची से इस्लामाबाद आए थे। मसला ये आप कवरेज नहीं देते, आपको यादाश्त कमजोर मीडिया में जो है वो FIR के ऑर्डर हो गए हैं, DPO, RPO, DC और सबके खिलाफ। तो क्या जिन लोगों के खिलाफ FIR के ऑर्डर हुए हैं वो ही जिम्मेदार हैं या सबसे पर्दा किसी को भी आप जिम्मेदार समझते हैं? वो जो GIT बनी है उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जब आ जाएगी तो सारे जिम्मेदार सामने। उसके ऊपर तमाम मीडिया को थोड़ा सा एक लाइन में जरूर आगाह कर दीजिएगा कि जो मुहर्रिकात अभी जो प्रोपोगेंडा उससे मुतालिक है उसके बारे में। उसका क्या प्रोपोगेंडा है? ये प्रोपोगेंडा है कि जो है वो ऑर्केस्ट्रेटेड था, ना कि जो है वो मिलादुन नबी के आड़ में सियासत करने की कोशिश होती है। जब हम सियासत करते हैं तो हम दबाव करते हैं और सीना चौड़ा करके हर मैदान में खड़े होकर बताते हैं हम सियासत करने के लिए आए हैं। जब हम अपने दीनी इशू के ऊपर आते हैं तो फिर हम अब बताते हैं कि हम अपने दीनी इशू के ऊपर आए। मैंने आपको पहले कहा कि तहरीक लब्बैक बुनियादी नजरियाती दीनी सियासी जमात। अच्छा सर थोड़ी सी डिटेल बताइए, क्या के सेशंस होंगे, किस तरह ये 3 दिन की तकरीबात को जो है वो जी वो उसके लिए दावतनामा भी है और सारे पहले चादर पोशी का एहतमाम है, उसके बाद महफिल किरात और नात है, उसके बाद हमारे जिम्मेदारान के तहरीक के उनके खिताबात हैं, फिर उलमा व मशाइख के खिताबात हैं, फिर आखिर में मरकजी खिताबात हैं रुकन शुरा और सब आजकल गली के बहुत चलते हैं, सोशा हालात तरीके से आप देखिए इस मुल्क में मालिक फिल्म नहीं चल सकी, वो किन के खिलाफ थी? उन ताकतवरों के खिलाफ। तो इस मुल्क में वो फिल्म कैसे चल सकती है या वो चलाने की कोशिश की जा रही है जो इस्लाम की बुनियादी असास के खिलाफ है? तो ये कौन लोग हैं जो उन फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड देते हैं? इसी तरह की एक फिल्म थी पहले जिंदगी तमाशा, उसको चलाने की कोशिश की गई थी। और ये एक मगरबी एजेंडा है, ये आज का नहीं है। ये हमें हमारे जो सियासतदान ट्रांसजेंडर किस्म के सियासतदान हैं इनसे विरसे में मिला रहा है। जिसका जो दिल आता है वो उनकी नजरियात को, उनकी चीज़ों को। अभी सलमान सूदी की मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था, उसने वो कहा कि वो मैं एडवाइजर टू PM है, वो कह रहा था कि मैंने बहुत कोशिश की और ये वो जब हमारे मुक्तदर लोगों के मुक्तदा लोगों के जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीट है उसके दाएं बाएं ऐसे लोग बैठे होंगे जो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं, तो फिर वो क्या समझते हैं कि मजहबी तबकों से उनका या दीनी तबकों से या माशरे के जो भी एक हसास तबके हैं उनसे उनका टकराव नहीं होगा, बिल्कुल होगा उनका टकराव। ये उनको ख्याल करना चाहिए कि हम जिस मनसब पर बैठे हैं, इस मनसब का जो बुनियादी हक है वो ये है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इसमें कोई भी चीज़ जो इस्लाम के खिलाफ है वो नहीं हो सकती। आप माशाल्लाह बड़ी मतलब तहरीक है और आप जो बात कहते हैं प्रार्थना उसको मुकम्मल अमल भी करते हैं। ये 3 रोज़ा जो आपका उस हो गया उसमें ये रास्ते बांध रहेंगे आप, तो क्या इसके लिए आपने इंतजामिया से कोई एमओ से लिया या इसके बादल आपने कुछ अरेंज किए हैं या ये बस अपने तौर पर ये सारा होगा? और ये रास्ते आवाम को भी काफी तकलीफ होती है सब सुबह से, ये रास्ते बंद होते हैं, हम इसका कोई बादल या कुछ अच्छा आपके पास? जी हमने इंतजामिया से तकरीबन 1 माह हो गए उनके साथ मुसलसल रास्ते में, और उनकी तरफ से नो रिस्पॉन्स, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो खुद रोड बंद करने में मसरूफ है, वो खुद धरने देने में मसरूफ है, ठीक है, और उनकी ड्यूटीज लगी हुई है कि वो शाखाएं बंद करें। अब हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास कोई करीब ऐसा ग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, हमें मजबूरन रोड के ऊपर प्रोग्राम करना पड़ता है। जब आगे की नजरियात की बात, अब हम अपना हक समझते हुए रोड बंद करते हैं। अभी हमारे पास अगर इसका मुतबादिल कोई जगह हो तो हमने ट्रैफिक के जो इदारे हैं उनसे भी रब्ता किया, पुलिस से भी रब्ता किया मुसलसल, ये तो उनका काम है मुतबादिल प्लान देना, लेकिन अगर वो नहीं देंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं बिल्कुल। इंशाल्लाह।